Hello dear students, this is Seema and today I am going to explain you class 10th first flight book, first chapter, A Letter to God. This chapter is written by G.L. Flint. This chapter is about a hard-working farmer. His name is Lencho. Lencho is living with his family to a low hill, and this year he expects good amount of crop, and but his field needs some rain. So he sees a huge cloud in the sky, and after some time when they have their supper, the rain starts, and after some time the rain convert into a hailstorm, and that hailstorm destroyed the whole crop. Lencho become hurts. He hurts heartily, but he has a strong faith in God, and that's why he decides to write a letter to God. And next day he writes a letter to God and asks for 100 pesos. When postmen read the letter, they laugh and shows that letter to postmaster. After laughing for a while, postmaster becomes serious and decided to collect some part of his salary, and rest he collected from his employees, and given 70 pesos to Lencho's posts. Next Sunday, Lencho came to post office and collected the letter and rest amount of money, and he wrote the letter once again to God asking for remaining amount. This time he wrote God that not send money by mail because the post office employees are bunch of crooks. So this is the story of a farmer. He has a strong faith in God. I will explain you this chapter line by line and will explain you the difficult word meanings too. So let's learn the lesson. So children, now we will learn line by line explanation. I will give you difficult word meanings. So let's start. The house, the only one in entire valley, sat on the crest of low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ये जो घर था, ये पूरी वैली में अकेला एक घर था जो नीची पहाड़ी पर चोटी पर स्थित था. लो हिल मीन्स नीचे की चोटी, पहाड़ी के नीचे की चोटी पर स्थित था. और उस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी और पकी हुई फसल को लगातार देख रहा था. उस फील्ड को, उस क्रॉप्ड फील्ड को, डॉटेड क्रॉप फील्ड्स को कंटिन्यू देख रहा था, जो हमेशा एक अच्छी फसल की प्रॉमिस करते थे. ऐसा लगता था कि वहाँ पर हमेशा अच्छी ही फसल होगी, लेकिन उस फसल को केवल एक और रेन की आवश्यकता थी, एक डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स थोड़ी सी जो वर्षा होती है उसको हम डाउनपोर बोलते हैं. एटलीस्ट अ शावर टाइप ऑफ रेन दैट फील्ड नीड. और इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत घनिष्ठता से, बहुत क्लोजली. वो न्यू हिज फील्ड क्लोजली. वो व्यक्ति जो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, उसे पता था कि उसकी फील्ड को केवल एक और रेन की आवश्यकता है, और वो बहुत ही उत्सुकता से आकाश की ओर देखता था कि अब एक और रेन हो जाए, बस मेरी फसल पककर तैयार हो जाएगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the summer ones playing near the house until woman called them all, "Come for dinner." बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के पास में खेल रहे थे. तो उसी समय जो वुमन सपर तैयार कर रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने सबको. सपर का मतलब होता है जो इवनिंग का मील होता है, शाम का भोजन होता है, उसको हम सपर कहते हैं. It was during the meal that Lencho had predicted big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no longer reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drop are 10 cent pieces and little ones are 5." लेंचो ने जैसे कि कुछ उसकी भविष्यवाणी जैसे वो कर चुका था, उसी के अनुसार, प्रेडिक्टेड मीन्स फोरटोल्ड, भविष्यवाणी. जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि इसकी क्रॉप को केवल एक और रेन की आवश्यकता है, तो उसकी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग ही बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स गिरने लगी. नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सा माउंटेन पर क्लाउड दिखाई देने लगा और बड़ी बड़ी
बारिश की बूंदें नीचे गिरने लगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बहुत अच्छी फ्रेश चल रही थी। वे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स से बड़े बड़े बादल आते दिखाई दे रहे थे और वह आदमी बहुत खुश हुआ। लेंचो बहुत ज़्यादा खुश होकर के बाहर की ओर भागा और उसने जोर से आवाज़ लगाई, देयर आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 cent pieces एंड लिटिल ones आर 5। उसने कहा कि जो बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही हैं बारिश की, वे 10। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Draped means covered. उसने देखा, वो बहुत संतुष्ट था। उसने देखा कि पूरा मैदान बड़े बड़े कॉइन्स से भर गया है, बारिश की बूंदों से भर गया है, कवर हो गया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक उसने देखा कि बहुत तेज हवा चलने लग गई है और उस हवा के साथ में बड़े बड़े हेलस्टोन्स भी गिर रहे हैं। हेलस्टोन्स क्या होते हैं? जो बारिश में ऐसे बर्फ़ के बड़े बड़े गोले जैसे गिरते हैं, उसको हम हेलस्टोन कहते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect frozen pearls. और ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे चांदी के सिक्के हों। ये चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे थे और जो बच्चे थे वो बारिश में जमे हुए इन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर दौड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man. वो चिल्लाकर कहा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। For an hour, the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। उसने आशा की थी कि जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जल्दी समाप्त नहीं हुआ और 1 घंटे तक घर के बाहर, बगीचे में, हिल साइड पर और पूरी खेत में और ये लगातार गिरता रहा और पूरी घाटी इससे ढक गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक का ढेर हो। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. The hell was left nothing. ये तमाशा कम से कम 1 घंटे तक चला। पूरे पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। जो कॉर्न थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी और जो फ्लावर्स थे वो गल गए थे। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और इस जो तूफान अब समाप्त हो गया था, लेकिन वो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने बेटे से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि अ फ्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दीज। लोकस्ट मीन्स होता है इंसेक्ट्स जो कि खेतों को पूरा बर्बाद कर देते हैं खा करके, जिसको हम हिंदी में टिड्डी भी कहते हैं। तो कहने लगा कि टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वंस, वो रात बहुत ही दुखी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा काम बेकार गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूख से मर जाएंगे। ऑल गो, मर जाएंगे भूख से। Here you have some questions in between from the phrases. आपको इन questions को solve करना चाहिए। You should go through the phrase. इन phrase को line by line explanation में इसीलिए दे रही हूँ कि आपको ये समझ में आए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे ही प्रोज एक्सट्रैक्ट आता है और उस प्रोज एक्सट्रैक्ट में से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो you should go through the lesson and solve these questions answer. Let's continue with the next paragraph. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उस पूरी वैली ने जो पूरी फसल को ख़राब कर दिया था, तो वो बहुत ही डिप्रेस हो गए थे कि अब तो हम सब भूख से मर जाएंगे। लेकिन उस निराशा में भी लेंचो को एक आशा थी। वो सोच रहा था कि भगवान हमारी मदद करेंगे, एक होप उसके पास थी। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. उसने अपने आप से कहा कि हाँ, हमें नुकसान ज़रूर हुआ है इस तरह से, लेकिन आज तक कोई भूख से नहीं मरा। Although the night Lencho
All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. और पूरी रात भगवान से मदद की उम्मीद करता रहा. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. लेंचो एक जानवर की तरह काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो लिखना पढ़ना वो जानता था. और इसीलिए उसने The following Sunday at the daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in mail. It was nothing less than a letter to God. उसने लिखना शुरू किया. अगले संडे को उसने लेटर लिखा और खुद जा कर के उस लेटर को डाक में डाला. God, he wrote, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow a field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so. So he wrote that letter to God. उसने God को लेटर लिखा. उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, जिसको हम लेटर लिखते हैं उसके लिए लिखते हैं. तो उसने भगवान को पत्र लिखा था, गॉड को लिखा था, तो उसने ऊपर लिखा भगवान के लिए पत्र. ठीक है. और उसके अंदर उसने लिखा कि इस साल मैंने मेहनत की और फसल लगाई, लेकिन वो सारी फसल इस हेलस्टॉर्म में नष्ट हो गई. ही रोट टू गॉड. जैसे हम ऊपर लिखते हैं, जिसको लिखना है उसके लिए टू करके लिखते हैं, तो उसने टू गॉड लिखा. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने पत्र के ऊपर लिखा भगवान के लिए और उस पत्र को खुद ले जा करके शहर ले जाकर पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगाया, उसने टिकट लगाया और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employee who was postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily, and shows him the letter to God. एक जो कर्मचारी था, जो कि पोस्टमैन था और डाकघर के दूसरे कामों में भी सहायता करता था, वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया और उसने इस लेटर को उसे दिखाया. लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने अपनी पोस्टमैन कैरियर में कभी भी इस एड्रेस को नहीं देखा था, लेटर टू गॉड को. द पोस्ट फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. जो पोस्ट मास्टर था वो भी बहुत हंसमुख और फ्रेंडली मैन था. एमिएबल मीन्स मैत्रीपूर्ण और फ्रेंडली. तो वो भी इस पत्र को पढ़ के जोर जोर से हंसने लगा. But almost immediately he turned serious and tapped the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of men who wrote this letter, starting up a correspondence with God." थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया और अपने कर्मचारी को कहने लगा, लेटर को टेबल पर रखते हुए उसने कहा कि मुझे विश्वास है, मैं कामना करता हूँ कि काश मेरा विश्वास इस आदमी की तरह हो जिसको भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास है और उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया. ही करस्पॉन्डेंस विद गॉड. वो भगवान से ही पत्र लिखकर बात करता है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. तो ये जो पत्र लिखा है जिसने, उसके विश्वास को कम नहीं होने देना है. पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया. उसको एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक विचार आया. आंसर द लेटर. उस लेटर का आंसर देने के लिए. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. फिर उसने जब पत्र को खोलकर देखा तो उसे स्पष्ट हुआ कि उत्तर देने के लिए उसको केवल उसके सद्भाव और केवल इंक और पेपर की ही आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता थी. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. लेकिन वो अपने फैसले पर अटल रहा. रिजोल्यूशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. उसने जो निश्चय किया था कि मैं इस आदमी की मदद करूँगा, उस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के प्रति वह सजग था, वह स्टक था, है ना. स्टक मीन्स कायम रहना, अपनी बात पर कायम रहना. तो अपनी बात पर कायम था उस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए जो उसने उस आदमी की मदद करने के लिए सोचा था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे भी मदद करने के लिए कहा और खुद ने भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उस भले कार्य में देने के लिए सोचा. सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उसके जो दोस्त थे वो भी
इस भलाई के कार्य में चैरिटी करने के लिए तैयार थे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो पूरे 100 pesos तो वो इकट्ठे नहीं कर पा रहा था, सक्षम नहीं था इस चीज़ में, लेकिन उसने उसके आधे से कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने उन पैसों को एक लिफाफे के अंदर डाला और लेंचो के एड्रेस पर उस लेटर को पोस्ट कर दिया, लेकिन उसमें उस लेटर में उन्होंने कुछ लिखा नहीं, केवल सिग्नेचर किए गॉड करके। ठीक है, अभी फिर यहाँ पर इस प्रिसाइज में से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। चलो, यू शुड रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस पैराग्राफ योर ओन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ itself. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो वहाँ आया, थोड़ा जल्दी आ गया, ये देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment मतलब satisfaction. तो वो जो डाकिया था उसने खुद ही लेंचो को ले जा करके वो पत्र सौंपा और उसे संतुष्टि थी कि लेंचो ये पत्र देख करके खुश हो जाएगा, और वो बहुत ही संतुष्टि की निगाह से लेंचो की तरफ देख रहा था। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ उस मनी को देख करके, जैसे कि उसे पूर्ण विश्वास था कि ये तो होना ही है, ये तो आना ही था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने मनी को काउंट किया तो वो थोड़ा रूड हो गया, क्रोधित हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं या मना कर सकते हैं, जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था 100 पेसोस के लिए. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और उसी समय लेंचो विंडो पर गया और उसने एक पेपर और इंक मांगी. एंड देन ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट. उसने लिखना शुरू किया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. और बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था. रिंकलिंग मीन्स गुस्से से. बहुत ज़्यादा उसने आईब्रोज को अपने गुस्से में चढ़ा रखी थी और बहुत ही गुस्से से वो पत्र को लिख रहा था. Caused by the efforts he had to make to express his ideas. और उसने अपने जो भी विचार थे अपने भावों को उसने उस पेपर में इंगित कर दिया. उस पेपर में उन्होंने लिख दिया. उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी लिखने में कि किस तरह से वो अपने भावों को एक्सप्रेस करे उस पेपर में. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the. फिर उसने एक टिकट मांगा विंडो पर से. उस टिकट को वहाँ पर चिपकाया और फिक्स किया, मतलब फिक्स किया और ले जा करके उसको लिफाफे को वहाँ दे दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जब मेल बॉक्स के अंदर वो लेटर आ गया तो पोस्ट मास्टर ने उसको खोलकर देखा. इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी. जो आपने पैसे मुझे भेजे हैं वो केवल 70 पेसोस हैं. जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पेसोस ही मुझ तक पहुँचे हैं. रीच्ड मी, केवल 70 पेसोस मुझ तक पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट. मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच. मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो. लेकिन उसने लिखा कि बाकी के बचे हुए पैसे मुझे भेजें, लेकिन ये पैसे मुझे डाक से मत भेजना, इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वे सब ठग हैं. वे ठगों का समूह है. बंच ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स मीन्स ठग. तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठग हैं और उन्होंने मेरे पैसे कम कर दिए और लास्ट में उसने अपने साइन किए. तो दैट वॉज द फेथ ऑफ लेंचो टुवर्ड्स द गॉड. Children, that's all in this explanation of this lesson, and writer would like to explain about his common man's faith in God. भी लेसन को लाइन बाय लाइन रीड ज़रूर करिए, क्योंकि जो प्रोज एक्सट्रेट आता है उसमें आपको इन बिटवीन द लेसन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.